Welcome to back to our channel. I hope you all are well. So let's start. Let's start with the remaining part or chapter. As you all know, in the last class we have studied we have started the chapter classification of plant, chapter 6. So we are continuing that chapter now, and I hope you have gone to the video. If you have not gone to the video, please go to the description box. You will get the video link ऑफ माय फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। फर्स्ट पार्ट का वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आया है, वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया था, फिर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वीडियो अपलोड किया है। सो गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज 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 गो टू दैट वीडियो, देन come to this video because here we will be seeing the second part, that is cryptograms का part. Okay. So I hope you all are aware about what we are going to study. Okay? Okay. I hope you all can see my screen. So let's start. Okay. So here we have, last time we have talked about what we have talked about last time. Anyone? Last time we have talked about last time we have talked about this basis of classification. Okay. What are the basis of classification, and on what basis that Robert no Ichler has classified that on the basis of presence of absence of flower, fruit, and seeds, he has classified in two groups: cryptograms and phanerograms. We are studying now classification of kingdom Plantae. We are not going into the other classification. We have five kingdoms of classification. Okay, you need to remember that point very very well. And we are going to study only Plantae. Okay, in that Plantae we have covered only basic basis of classification only we have covered. Now we are starting with the first this first group of classification. Okay. Now we are starting with the first cryptograms. Okay, we are starting with cryptograms. Okay. So cryptograms are the one which I just in the last lecture only I have told that cryptograms are the one which do not have flower, fruit, and leaf, flower, fruit, and seed. Okay, they do not have flower, fruit, and seed. Okay, there is absence of flower, fruit, and seed. In which plants there is absence of flower, fruit, and seed, they belong to cryptograms. Okay, I hope you remember they belongs to cryptograms, and phanerograms are the one which have the flower, fruit, and seeds well developed. Okay. So how do this question is come to our mind, that how do that cryptograms reproduce if they don't have fruit, flower, and seed? Yes. So the answer to this question is that they reproduce by spore formation. Okay, very important. It may ask in your exam that if as we know, the cryptograms do not have flower, fruit, and seed because flower is a reproductive organ of the plant. So they do not have that. So how do they reproduce? How do they make their family? How do they increase their this, what we can say, generation, how they increase? So answer this question is they reproduce by spore formation. Okay, correct. Okay, so here it is given that observe. Now observe, what you need to observe, you need to do this experiment in your house and see happens to the this what happens to this green thread-like structure appears, and this is we call it as pyrogyra. Okay, what you need to do? You need to search for a pond with greenish water. Okay, with greenish water का एक पॉन्ड हमें ढूंढना है। उसमें से कुछ ग्रीन फाइबर्स उसमें से ले लो। कुछ फाइबर्स को एक पेट्री डिश या फिर कोई भी एक डिश में लेके वो और उसको धो लो अच्छे से। ठीक है, वी नीड टू वॉश देम विद क्लीन वाटर। पुट वन ऑफ द फाइबर द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट आउट स्ट्रेट। ओके, तो उस
उस फाइबर में से एक फाइबर का उस फाइबर में से एक फाइबर को ड्रॉप करो, ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद में उस फाइबर को डाल दो, और डाल के उसको एज अ एक्सपेरिमेंट के लिए रख दो। ठीक है, कवर स्लिप लगा दो। ओवर द ऑब्जर्व अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक फाइबर को, सिर्फ एक फाइबर को लेके आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे या आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपकी टीचर्स अलाउ करती है तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करने मिल सकता है। ओके। अगर आपकी टीचर अलाउ करती है तो आपको एक्सपेरिमेंट करने मिल सकता है। ओके। सो ऐसा आपको करना है कि माइक्रोस्कोप पे दिख रहा है, माइक्रोस्कोप हमारे घर में नहीं होता है, जिसके पास होगा वेल एंड गुड। ठीक है, तो आप अपने घर में भी माइक्रोस्कोप लेके एक फाइबर का एक पार्टिकल डाल के उसको स्लाइड में डाल के देखो। ठीक है, तो आपको दिखेगा, दिस इज नोन एज स्पायरोग्राफ, जो उसमें आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट जो दिखेंगे, वो क्लोरोप्लास्ट और कुछ नहीं, ये होंगे, क्या होंगे, इन द सेल स्टेट फाइबर क्या होते हैं वो और कुछ नहीं, स्पाइरोगायरा होंगे। ओके, तो स्पाइरोगायरा आर द वन विच आर प्रेजेंट इन द, किसमें प्रेजेंट होते हैं वो, ग्रीनिश वाटर में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली का कलर क्या होगा, ग्रीन। क्या कलर होगा, ग्रीन कलर होगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि स्पाइरोगायरा कैसे है, कैसे ढूंढते हैं उनको। Okay. Next we are going to start with the division one, that is Thallophyta. Okay. What we are going to start with the division one, that is Thallophyta. So these plants grow mainly in water. Okay. This is the important point. This plant grow mainly in water. This group of plant which do not have specific part like root, stem, leaves, flower. This okay. First only in the starting only I have told that cryptograms are the one which do not have root, stem, leaf, flower, fruit, anything they don't have. Okay, so that point only here mentioned that they do not have stem, root, leaf, flower, but are autotrophic. बट दे आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, दे मेक दैट ओन फूड विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इट्स कॉल्ड अलगे। ठीक है, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए उन लोग को ऑटोट्रॉपिक है, इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, अलगे बोलते हैं। अलगे शो ग्रेट डाइवर्सिटी, दे हैव वेरी मच डाइवर्सिटी, दे मे बी यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर होते हैं वो, एक सेल के हो या दो सेल के हो, तीन सेल के हो, बहुत सारे सेल के होते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। एग्जाम्पल्स ऑफ अलगे आर, मतलब थैलोफाइटा जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, उस ग्रुप ऑफ प्लांट में पहला हमने क्या पढ़ा कि मेनली कौन आता है, अलगे आते हैं, कौन आते हैं, अलगे। अलगे आर द वन विच कम्स मेनली इन दिस ग्रुप। ओके, तो थैलोफाइटा में अलगे आ गए। और अलगे का एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो एग्जाम्पल्स जो स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रेक्स, यूल्वा, sargassum, etc. Some of these are found in fresh water while some are found in saline water. ओके, इस इन चारों में से या फिर जो भी अलगे होते हैं वो पानी में ही होते हैं, इतना याद रखो कि अलगे हमेशा पानी में ही ग्रो करते हैं। ठीक है, जो हम देखो, जिसको हम लोग काई बोलते हैं, काई सुना होगा आप लोगों ने कि बारिश में काई लग जाती है, तो वो काई एक तरह का अलगे ही होता है। ठीक है, तो अलगे के टाइप्स क्या क्या है, स्पाइरोगायरा, एग्जाम्पल यू नीड टू रिमेम्बर, Spirogyra, Eulothrex, Vulva, Sargassum. Okay, these are found in fresh or saline water. These plants usually have a soft and fiber-like body. Various types of fungi like yeast and molds which do not have chlorophyll are also included in this group. ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं, इनके प्लांट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनका प्लांट का स्ट्रक्चर में रूट स्टेम लीफ तो होता नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट और फाइबर लाइक होती है। ये पूछ सकते हैं हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थैलोफाइटा, पूछता है। तो थैलोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या डालोगे आप लोग, आप लोग डालोगे दे मेनली ग्रो इन वाटर, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, क्या डालोगे, दे मेनली ग्रो इन वाटर, मेनली ग्रो इन वाटर। फिर दिस ग्रुप ऑफ प्लांट डू नॉट हैव, they do not have this they do not have root stem of leaf। okay, root stem leaf नहीं होते इनके पास।
उसके बाद दे आर ऑटोट्रॉपिक। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि वो अपना खुराक खुद बनाते हैं। द ऑटो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स इज कॉल्ड अलगे। अलगे शो ग्रेट डाइवर्सिटी। ओके, दे मे बी यूनिसेल्युलर होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ अलगे स्पाइरोगारा, यूनिवर्स सार्गासस एक्सेट्रा। They are found in fresh or saline water. These plants usually have soft and fiber-like body. Okay. और अदर टाइप्स जो फंगाई होते हैं, क्या होते हैं? फंगाई जो होते हैं, लाइक यीस्ट और मोल्ड, विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, मतलब उनके पास क्लोरोफिल नहीं होते खाना बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको हम इसी ग्रुप पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना होगा आपको कि फंगाई जो होते हैं इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो भी ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। Okay, firstly I should rub this. Okay, let me do this. I should first rub this, and then only I can go to the next. Okay, allow me some time, please, to rub this, all this innovations I have done here. Okay. Okay. This, you can see here, what is Yulva? Yulva सी ग्रिल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्रीन स्ट्रक्चर है, और उसमें क्या है? ये स्पोर्स होते हैं इसमें। ये रिप्रोड्यूस किससे करते हैं? स्पोर्स से, रिफॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फंगाई का मैंने बोला, जैसे फंगाई क्या होते हैं? फंगाई दे फंगाई के इनके पास यीस्ट और मोल्ड्स जो है नॉट हैव क्लोरोफिल आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। तो देखो, चारा चारा इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ दिस थैलोफाइटा ग्रुप। देखो उनके पास कैसा थ्रेड लाइक दिख रहा है, थ्रेड थ्रेड थ्रेड। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके पास। ठीक है, और स्पाइरोगायरा का डायग्राम दिया है, और ये स्पाइरोगायरा का डायग्राम, आई रिपीट, दिस डायग्राम इज कंपल्सरी, ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ? व्हाट आई एम टेलिंग इज कि ये स्पाइरोगायरा का डायग्राम ये पूछते हैं एग्जाम में। क्या करते हैं? पूछते हैं एग्जाम में। सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस डायग्राम। ठीक है, यू नीड टू रिमेम्बर दिस डायग्राम, एंड इसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से कि कैसा करते हैं, क्या होता है इसमें। ओके, तो ये एग्जाम में पूछता है डायग्राम की सेल वॉल कहाँ है। सेल वॉल न्यूक्लियस इधर होता है बीच में। और इसको क्या बोलते हैं? ये जो लाइंस है, ग्रीन ग्रीन लाइंस गई है, ये ग्रीन ग्रीन लाइंस में ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं? पायरोनॉइड। क्या बोला जाता है? पायरोनॉइड। उसके बाद, उसके बाद ये जो बीच का गोल गोल है ना, ब्लैक रेड ग्रीन कलर का, उसको पैरानॉइड्स बोलते हैं एक्चुअली। और ये जो लाइंस है, एक दो तीन, ये जैसा बना हुआ है, इसको हम लोग स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ग्रीन कलर का जो बाहर का सरफेस एरिया, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, बाहर का कवरिंग को क्या बोलूंगी मैं? सेल वॉल, ऑब्वियस सी बात है, सेल वॉल होगा। बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है। डायग्राम बनाना बहुत आसान है, जिगजैग लाइंस बनाना है। जिगजैग लाइंस में आपको एक डॉट 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 पैरानॉइड्स को डालना है। ठीक है, वो पैरानॉइड्स है हमारे। ठीक है, सेल वॉल, न्यूक्लियस, पैरानॉइड एंड स्पाइनल क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ चार ही लेबलिंग है, बहुत आसान होता है बनाना भी और याद करना भी। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग इस स्पाइरोगारा के डायग्राम को अच्छे से थरो कर लीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। प्लांट्स ऑफ थैलोफाइटा डिवीजन होते हैं, क्या क्या होते हैं? एग्जांपल्स बहुत दिमाग में याद रखना बहुत जरूरी है। स्पाइरोगायरा, चारा, वॉलबैक, सरगासम। ओके, तीन याद रखोगे बस हो गया, उससे कुछ ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिवीजन इज व्हाट? सेकेंड डिवीजन इज ब्रायोफाइटा। क्या है नेक्स्ट डिवीजन? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इज द नेक्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन थैलोफाइटा हमने कवर कर लिया कि थैलोफाइटा क्या होते हैं। थैलोफाइटा कवर करने के बाद अब हम जा रहे हैं किसके ऊपर? ब्रायोफाइटा के ऊपर। ओके, सो ब्रायोफाइटा बेसिकली क्या होते हैं? ठीक है,
In this group of plants is called as this group of plants is called as amphibians. क्या बोले जाते हैं इस ग्रुप ऑफ प्लांट्स को? एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस आपको बचपन में आपने पढ़ा होगा, आई थिंक एट स्टैंडर्ड में। एम्फीबियंस कौन से ग्रुप क्या होते हैं एम्फीबियंस? Amphibians are the one can live which can live in water as well as in land। कहाँ वो लोग दोनों जगह रह सकते हैं? कहाँ रह सकते हैं? वाटर पे भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आर द वन विच कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। वाटर और लैंड में रहने वाले को हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इस केस में क्या हो रहा है, ब्रायोफाइट्स में क्या हो रहा है? ब्रायोफाइट्स में हो रहा है कि दिस इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हैं वो लोग? कि एम्फीबियंस तो वो होते हैं जो प्लांट और लैंड दोनों में रहते हैं। ठीक है, पानी और लैंड दोनों में रहते हैं। ठीक है। लेकिन इसी तरह से हमें क्या बोला जा रहा है कि दे इन केस में इस केस में ब्रायोफाइट जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। उनको पानी क्यों चाहिए? सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। दिस प्लांट्स आर थैलॉइड। थैलॉइड मतलब से फ्लैट होते हैं, जैसे युलगा को देखा आपने, फ्लैट होता है, इसलिए इनका नाम थैलोफाइटा होता है क्योंकि ये फ्लैट होते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइट्स में ब्रायो का मतलब ही शायद एम्फीबियंस होता है, इसीलिए इनका नाम ब्रायोफाइटा है। ओके। सो थायराइड होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं और ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। ठीक है। आपको सर डिस्टिंग्विश पूछ सकता है थैलोफाइट और ब्रायोफाइट में डिस्टिंग्विश करो, तो आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है। दिस प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टीसेल्युलर एंड ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक होता है मतलब अपना खाना खुद से बनाते हैं। थैलोफाइट में अपना खाना खुद से बनाया करते थे। दे प्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ओके, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ये कॉमन पॉइंट होगा, दो तीनों में कॉमन पॉइंट होगा एक्चुअली। क्रिप्टोग्राम्स में कॉमन पॉइंट होगा, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर कैसा था, हमारा थैलोफाइट में सॉफ्ट और फाइबर लाइक बॉडी होता था। ठीक है। इस केस में स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज अ फ्लैट। फ्लैट होते हैं, रिबन लाइक लॉन्ग विदाउट ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीफ। उसमें भी क्या था, थाइलोफाइट में भी क्या था? ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं प्रेजेंट था, इसमें भी नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। उसमें क्या था स्ट्रक्चर हमारा? सॉफ्ट फाइबर लाइक। इसमें क्या होता है? फ्लैट होते हैं, रिबन लाइक लॉन्ग होते हैं। इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक राइजोड्स। मतलब उनके पास स्टेम लाइक पार्ट्स है। ठीक है। ट्रू रूट स्टेम नहीं है लेकिन स्टेम जैसा कुछ तो है। और लीफ जैसा कुछ तो है, जैसा है। लाइक बोला है, लाइक वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनके जैसा है। ट्रू रूट्स नहीं है, मतलब वो एक्चुअली में रूट नहीं है। रूट जैसा दिखता है, लीफ जैसा दिखता है। और रूट जैसा क्या, राइजोड्स को रूट बोला गया है। राइजोड कैसे दिखते हैं? रूट जैसे दिखते हैं। स्टेम एक तरह का कुछ तो दिखता होगा, दिखता है। स्टेम नहीं है। do not have specific tissues for conduction of water and water food and water। मतलब वो लोग कंडक्ट नहीं कर सकते फूड और वाटर ऊपर नीचे, जैसे बाकी जो प्लांट्स होते हैं वो कंडक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखना आपको, बॉसेस बॉसेस है फनेरिया, बच्चनटिया, एंथोसेरोस, रिशिया, एक्सेट्रा। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्फीबियंस बहुत छोटा, ब्रायोफाइट सॉरी ब्रायोफाइट्स बहुत छोटा पार्ट है। क्या क्या होते हैं उनको एम्फीबियंस बोला जाता है? क्यों एम्फीबियंस बोला जाता है? क्योंकि वो ग्रो करते हैं मॉइस्ट सॉइल में भी, प्लस वाटर चाहिए उनको रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है। फिर उसका स्ट्रक्चर प्लांट्स के पास होते कैसे हैं? वो थैलॉइड होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है। और दे रिप्रोड्यूस बाय, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन से। उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है ब्रायोफाइट्स का? फ्लैट, रिबन लाइक, विदाउट ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। उनके पास ट्रू रूट स्टेम एंड लीव नहीं होते, लेकिन दे हैव स्टेम लाइक, स्टेम जैसा कुछ तो, लीफ जैसा कुछ तो, और फ्रूट रूट लाइक राइजोट्स होते हैं। रूट कैसे होते हैं? राइजोट जैसे। राइजोट जो है उनको रूट बोला गया है। इनके पास स्पेसिफिक टिश्यूज नहीं है कंडक्शन के लिए। एग्जाम्पल क्या डालोगे? बॉसेस, फोनेरिया, मर्चेंटिया। ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ लेट्स गो डाउनवर्ड। ओके, पहले मुझे इसको रफ करना पड़ेगा वरना फिर ये साथ में चलेंगे मेरे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये तो।
ओके, चलो नीचे चला जाए। ओहो देखो, यहाँ डायग्राम आ गया। ठीक है, प्लांट्स के डायग्राम आ गए मेरे पास। अब आप देख सकते हो ये मेरा क्या है, फोनेरिया है। क्या है, फोनेरिया है। अब देखो इसके पास लीव्स है, लीफ जैसा कुछ तो है कि नहीं है। ये राइजोट दिख रहा है आपको नीचे, ये राइजोट दिख रहा है आपको। ठीक है, ये कैसा रूट जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये रूट नहीं है एक्चुअली ये, लेकिन ये राइजोट, राइजोड रूट जैसा है। ओके, उसके बाद देखो लीफ लाइक पार्ट्स इनके पास है, स्टॉक भी इनके पास एक्स्ट्रा एक चीज होती है। क्या होती है इनके पास, स्टॉक होता है। और स्टॉक के ऊपर जो ऐसा पॉइंटर जैसा निकला है उसको क्या बोलते हैं, हम कैप्सूल बोलते हैं। और याद रखना फोनेरिया का डायग्राम भी पूछता है। ठीक है, स्पाइरोगायरा फ्रॉम थैलोफाइटा और ब्रायोफाइट में से फोनेरिया का डायग्राम आपको बोलेगा, स्केच एंड लेबल द डायग्राम ऑफ फोनेरिया। ओके, ये एग्जाम में आता है तो प्लीज ध्यान देना इसका। ठीक है, क्या क्या होते हैं इसके पास, राइजोट्स होते हैं, लीफ लाइक पार्ट्स, जैसे लीफ जैसे दिख रहा है वो होता है, इसको स्टॉक बोला जाता है, जो डंडी खड़ा हुआ है बाहर निकला होता है प्लांट्स में से। और जो ऊपर ऐसा पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। नेक्स्ट मर्चेंटिया में सेम जैसा है, देखो फ्लैट बॉडी दिख रही है, फ्लैट थैलॉइड जैसी बॉडी है। ठीक है, इनके पास भी राइजोट्स होते हैं, ये भी लीफ जैसा स्ट्रक्चर इनके पास है, स्टॉक इनके पास भी है और कैप्सूल भी इनके पास है। ठीक है, उसके बाद एंथोसेरस भी देखो फ्लैट लीफ लाइक कुछ तो निकल रहा है, ऊपर कैप्सूल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से लोग स्पोर फॉर्मेशन यहाँ से जो है रिप्रोड्यूस करते होंगे कैप्सूल से। ओके, ओके नेक्स्ट थर्ड डिवीजन है, द लास्ट डिवीजन ऑफ द थैलोफाइटा ग्रुप, क्या है, टेरिडोफाइट्स। क्या है, टेरिडोफाइट्स। ओके, यू मे हैव सीन फर्स अमॉन्ग द ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन द गार्डन। ठीक है, फर्स को क्या बोला जाता है, ऑर्नामेंटल गार्डन। दे टेक अ लीफ ऑफ फुल्ली ग्रोथ फॉर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। क्या बोला है इन्होंने, फर्स जो होते हैं, फर्स, फर्स को एक बार लो और उनको ध्यान से देखो कि उनके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, इनको ऑर्नामेंटल गार्डन बोलते हैं क्योंकि ये दिखते इतने अच्छे प्यारे हैं कि ऐसा लगता है इन्होंने गहना पहना हुआ है। ठीक है, सो टेरिडोफाइट्स क्या पढ़ रहे हैं हम अभी, टेरिडोफाइट्स। ओके, pteridophytes, oh sorry, what happened this, okay, pteridophytes, plants from this group have well developed root stems and leaves. Okay, सबसे important point, टेरिडोफाइट थोड़े ऐसे होते हैं जो जिनके पास थोड़े वेल डेवलप्ड रूट स्टेम्स और लीफ होते हैं, और इनके पास टिश्यूज भी होते हैं। मतलब आप सोचो कि बरायोफाइट थैलोफाइट से बहुत अलग होते हैं टेरिडोफाइट, दे एडवांस लेवल के प्लांट्स के ग्रुप आते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, थोड़े। अब इसको आप बोलोगे कि इसके पास वेल डेवलप रूट स्टेम और लीफ है, तो इसको क्रिप्टोग्राम्स में क्यों रखा गया है, बरोबर है। तो इसका रीजन है, इसका रीजन ये है, आप लोग ये सोचो इसका रीजन क्या होगा कि इनके पास वेल डेवलप्ड रूट स्टेम लीफ सब कुछ है, तो इसको हम लोग ने इसमें क्यों नहीं डाल दिया, फेनोग्राम्स में क्यों नहीं डाल दिया। ठीक है, क्यों नहीं डाला, इसका रीजन ये है कि इनके पास वेल डेवलप्ड फ्रूट स्टेम लीफ है, कंडक्शन के लिए, फूड के और वाटर के लिए सेपरेट टिश्यूज भी है। बट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। देखो इनके पास फ्लावर्स और फ्रूट्स ही नहीं है, और फ्लावर्स ही तो मेन रिप्रोडक्शन का ऑर्गन होता है जो इनके पास है ही नहीं। ठीक है, फ्रूट ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। कहाँ से रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स फॉर्म्ड अलोंग द बैक ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीव्स। देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये इनका स्पोर्स है, ये देखो ये इनके स्पोर्स है, इसी से ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोरेंजिया इधर सोरी और लीफलेट, ये लीफ के ऊपर ऐसे स्पोर्स बने होते हैं, देखो इधर सब में दिख रहा है आपको, ये सब स्पोर्स है, ये सब क्या है, स्पोर्स है ये सब। ठीक है, इसी से ये लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल आर फर्स लाइक डेफ्रोलिस, डेफ्रोलिपिस सॉरी, डेफ्रोलिपिस, डेफ्रोलिपिस फर्स में आते हैं, बर्सिलिया, पेट्रीस ट्रीज, आइडेंटम एक्यूसेटम, सेलेजिडेला लाइकोपोडियम। ठीक है, बहुत अजीब अजीब नाम है इनके एक्चुअली, लेकिन इसमें आप एक ही याद रख सकते हो, नेफ्रोलिपिस। ओके, नेफ्रोलिपिस याद रखा बहुत बहुत सही है। ठीक है, नेफ्रोलिपिस याद रखना आसान भी है। ठीक है, उसके बाद देखो,
समझ में आया पॉइंट? समझ में आया आपको क्या बोलना चाहती हूँ? बट टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, टेरिडोफाइट्स के पास वेल डेवलप्ड रूट स्टेम लीफ होते हैं, डिस्टिंग्विश आप डाल सकते हो पॉइंट। ठीक है, उनके पास कंडक्टिव टिश्यूज के लिए ये भी होते हैं, कंडक्शन टिश्यूज भी होते हैं अलग अलग। लेकिन उनके पास फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट नहीं होते हैं, डू नॉट हैव फ्लावर फ्रूट, एंड दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो लोग? स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। और एग्जाम्पल्स क्या क्या है ये देख लिया आपने, नेफ्रोलिपिस, बर्सिलिया, पेट्रिस। तो टेरिस, टेरिडोफाइट से टेरिस टेरिडोफाइट, नाम देखो सिमिलर लग रहा है। एडियंटम, एक्यूसेटम, सेलेजिनिला, लाइकोपोडियम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। ओके, चलो नेक्स्ट अभी आगे जाते हैं हम। आगे आगे चलेंगे हम। Okay. अभी देखो इसमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, दिस प्लांट्स ऑल्सो, एक कुछ पॉइंट दिया है कि दिस प्लांट असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअली बाय जायगोट फॉर्मेशन। ठीक है, असेक्सुअली मतलब क्या कि अगर अकेला सिर्फ ये कर रहा है, इसको स्पोर से कर रहा है, तो वो अकेला सिर्फ स्पोर फॉर्मेशन ये प्रोड्यूस करता है। और अगर सेक्सुअली कर रहा है दो प्लांट साथ में, तो जायगोट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन से वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है। जो हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम, उनके पास कंडक्टिव सिस्टम काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो यूज योर ब्रेन पावर। क्या ब्रेन पावर यूज करने बोल रहा है हमें? कि देखो ये प्लांट टेरिडोफाइटिक डिवीजन होते हैं, देखो ये ऐसे दिखते हैं, स्पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं इनके पास। ठीक है, तो व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन द प्लांट्स ऑफ द ग्रुप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा इन रिस्पेक्टिव डिफरेंस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर? आप लोग बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, आई वांट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, कि क्या सिमिलैरिटी है तीनों प्लांट में, ठीक है, तीनों डिवीजन में, सॉरी, तीनों डिवीजन में इन रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस इन बॉडी स्ट्रक्चर। तो बॉडी स्ट्रक्चर को मत देखो आप, बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो है ही है, वो दिख रहा है हमें। ठीक है, लेकिन उसके अलावा इनके इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है? ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है इनके बीच में? मुझे तो एक ही सिमिलैरिटी दिखती है कि ये तीनों चीज तीनों के तीनों डिवीजन में स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, बाकी और सिमिलर क्या है कि फ्रूट स्टेम और लीव्स नहीं होते, लेकिन टेरिडोफाइट्स के पास होते हैं, तो वो सिमिलर नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद इनका डिफरेंस, स्ट्रक्चर तो अलग अलग है ही। ठीक है, कि स्ट्रक्चर कैसा है इनका, एक का थायलॉइड है, रिबन लाइक, एक का फ्लैट स्पोर लाइक, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, फाइबर लाइक है। थैलोफाइटा का, ब्रायोफाइटा का रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। टेरिडोफाइट्स में कैसे होते हैं? टेरिडोफाइट का स्ट्रक्चर नहीं दिया है हमें। नहीं, इनके पास प्रॉपर वेल डेवलप्ड रूट स्टेम लीफ है ना, तो इसका पूरा प्रॉपर ऐसा लीफ जैसा स्ट्रक्चर आएगा एकदम प्रॉपर। ठीक है, तो इसमें कुछ वैसा नहीं है, लेकिन मुझे इन तीनों में सिमिलर एक ही चीज दिखा, दैट इज दे हैव स्पोर। को यहाँ पे आंसर भी दिया है, वाओ। ऑल दिस by produced by spore formation, they are called cryptogams as their reproductive organs cannot be seen। देखो यहाँ पे क्रिप्टोज हिडन गैप्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वाओ व्हाट अ पॉइंट आई गॉट। ठीक है, मुझे तो दिखाई था ये, मुझे अभी दिख रहा है ये, कितना अच्छा पॉइंट है ये एक्चुअली में। ठीक है, कि दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, यही इनके अंदर सिमिलैरिटी है, इन्होंने आंसर नीचे दे दिया। ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राम्स, इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राम्स। क्यों क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं? एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन, इनका रिप्रोडक्टिव हमें दिखता ही नहीं है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हमें दिखता ही नहीं है। क्रिप्टो मीन्स हिडन, क्रिप्टो मतलब क्या होता है? हिडन, देखो छुपा हुआ। और गैप्स मतलब क्या होता है? गैप्स मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो फेदरोग्राम्स का इसका उल्टा होगा, फेदरोग्राम्स में क्या होगा? फेरो मीन्स होता रहेगा कि खुला, और गैप्स का मतलब तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई गॉट हियर, इट इज क्रिप्टो गैप्स। क्रिप्टो मीन्स हिडन होता है, गैप्स का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ऑल दिस प्लांट रिप्रोड्यूस बाय व्हाट? they reproduce by spore formation. How they reproduce by spore formations. Okay, I hope you all understood what I am trying to say you all। ठीक है, कि कैसे होते हैं, क्या हो रहा है तीनों तीनों डिवीजन में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ग्रेडोफाइटा किसके अंदर आते हैं? क्रिप्टोगैम्स के अंदर। देखो यहाँ पे लोग छुपा के एक पॉइंट दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो मतलब हिडन, गैम्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये सॉरी, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि क्रिप्टोग्राम्स का एक्चुअल डिवीजन क्या क्या है और कैसे ये होते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में फेनोलोग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली मैंने इसका ओवरव्यू दे ही दिया था कि फेनोलोग्राफ्स में दो होते हैं डिवीजन, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है,
बस हमें ये दो डिवीजन पढ़ना है और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मोनोकोड और डाइकोड का डिस्टिंग्विश बिटवीन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। 100%, 100% तो कोई चीज होती नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैं बोल सकती हूँ 99%, 1% चांस नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मैं झूठी उम्मीद नहीं दूंगी आप लोगों की, आप लोग बाहर करके जाओ बोले कि मैम ने बोला था आएगा आएगा, पर नहीं आया। सो आई डोंट वांट दैट। सो लेकिन मैंने मेरे टाइम पे हम जब एग्जाम देते थे तो वहां पे इन लोग ये क्वेश्चन मतलब फेवरेट, टीचर लोग का फेवरेट होता था, डालना ही डालना है उनको। ठीक है, तो वो लोग डालते ही डालते थे। ये चैप्टर में से अगर ये चैप्टर एग्जाम पोर्शन में है, यूनिट टेस्ट में आ रहा है या फिर सेकंड यूनिट टेस्ट में आ रहा है, जो भी है, तो उस चैप्टर का ये क्वेश्चन तो दिखता ही नहीं है। लेकिन बच्चे इसमें गलती क्या करते थे आपको बताओ? हमारे फ्रेंड्स बहुत गलती लोगों ने किया है। यहाँ डाइकॉट लिखते हैं लेकिन ये पॉइंट जो होता है ना, वो मोनोकॉट का होता है। ठीक है, और यहाँ मोनोकॉट लिखते हैं और यहाँ पॉइंट्स किसका होता है? डाइकॉट का होता है। क्यों बताऊँ मैं ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे ना वो लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन में पहले डाइकॉट दिया फिर मोनोकॉट दिया। लेकिन हमें आदत क्या होती है, हम स्टार्टिंग में, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट नहीं आएगा, मोनोकॉट एंड डाइकॉट आएगा। तो हम मोनोकॉट भी यहाँ लिख देते हैं या डाइकॉट लिख देते हैं, लेकिन हमें पॉइंट्स कैसे याद होते हैं? उल्टा याद होते हैं, डाइकॉट का पहले मोनोकॉट का बाद में। तो हम डाइकॉट का पहले लिख देते हैं और मोनोकॉट का बाद में, तो पूरा रॉन्ग मिलेगा। क्या हो जाएगा? पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग, 0 मार्क्स। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए तो पूछा ही जा सकता है। कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है? कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन? 3 मार्क्स। व्हाट? अरे क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। कितने मार्क्स के लिए पूछा था? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके, 3 मार्क्स। इसको ध्यान देना, इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट याद करना। ठीक है, कि रूट स्टेबल लीव चारों पॉइंट्स को लेके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस हम इसको याद भी करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसी तरीका बताओ याद करने का। ठीक है, ताकि आपको ये याद हो जाए। ओके। ओके। सो उसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, खत्म नहीं होता एक्चुअली, एक पार्ट बाकी है। ठीक है, देखो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम्स, क्रिप्टोग्राम्स, पैरेललोग्राम्स, क्रिप्टोग्राम्स का 3 पार्ट आज हमने पढ़ लिया। क्या कर लिया? इसका 3 पार्ट हमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, हमने तीनों पार्ट क्रिप्टोग्राम्स का आज पढ़ लिया। थैलो, ब्रायो, टेरिडो। ठीक है, फाइटा मतलब क्या होता है? प्लांट्स ही होता है एक्चुअली। फाइटा मतलब प्लांट्स ही होता है। एकदम प्लांटे के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। क्रिप्टो मतलब हिडन, गैम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। Okay, I hope you all understood what I'm trying to say you. Okay, कि हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, क्या कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये डायग्राम्स अच्छे से कर लेना। इसका ये राइजो सॉरी फोनेरिया का डायग्राम एग्जाम में पूछता है। और स्पाइरोगायरा को लेबलिंग लेबलिंग या फिर पूरा बनाने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये 2 डायग्राम ध्यान रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग हमने इसी से किया था, किंगडम प्लांटे से, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से। हम उसमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड एफर्ट्स। ओके, कब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आए क्रिप्टोग्राफ्स में पैथोग्राफ्स की, वो फटाक से मिल जाए। ठीक है, फटाक से मिल जाए और आप अपना पूरा प्रॉपरली सब कुछ कवर करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर इसकी पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको प्लीज 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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली है इसके पहले की वीडियो की, वो जाके देख लीजिए। आई थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय, गुड बाय नहीं, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। ओके।